Hello friends, welcome to the class and today's topic is force and energy and this is part of unit 4 material and matter. Here chapter preview is written that we are going to study types of force, form of energy in this chapter. Look at this picture, what is happening here? Observe this picture carefully, okay? And you will be learning about the different type of force, about the different forms of energy. So why it is important to learn these things? We use different type of force to do different activity and different form of energy are used to do these different activities. So we must therefore learn about the different type of force as well as the different type forms of energy. So here all the activity we do every day involve the force and they also require energy. So do you know the difference between the force and energy? So can you please mention the name of those activity which we do in our daily life? So before you mention, I want to explain something. Many activity in our daily life require both force and energy. So what is force? Force is push or pull that help move or stop an object. So what is energy? Energy is the ability to do work or perform an activity. So डेली लाइफ एक्टिविटी कौन कौन सी है जिनमें हमें फोर्स और एनर्जी की जरूरत होती है? वॉकिंग वॉकिंग में हमारा जो लेग है वो पुश करता है ग्राउंड को यानी कि फोर्स अप्लाई करता है. हमारी बॉडी यूज करती है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ फूड. वो एनर्जी वॉक करने के लिए यूज हो रही है. राइडिंग अ बाइसाइकिल, we push the pedal, we apply force. Muscular energy is used, so energy is used in riding bicycle. And the third activity is lifting a school bag. So our hand lift the bag upward, है ना? And the energy from the muscles is needed there. When we open the door, we push the door or pull the door. So force is required for that. And muscular energy is used there. When we are writing with a pencil, finger apply force on the pencil and our hand muscle use the energy. So that there is also force and energy is used. When we play the football, we kick the ball. Body use muscular energy there also. While cooking the food, we stir, we cut. For those things also we need force, na? And heat energy is used in the cooking, so their energy is also used. So switching on a fan, we press finger, we press the switch and the energy is used there. Which energy? Electrical energy runs that fan. When we carry a water bucket, arm lift and carry the bucket. Muscular energy is needed to carry the bucket. So there is also force and energy used. Pushing a trolley. In this picture, pushing a trolley or cart. So we push the trolley. Force is required. Our body provide energy. Energy is consumed there. So activity like walking, lifting, pushing, writing, cycling require force and energy to perform work. तो हम अपने दैनिक जीवन में कई कामों में बल यानी कि फोर्स और ऊर्जा दोनों की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, साइकिल चलाना, बैग उठाना, दरवाजा खोलना. तो इन कामों में हम अपने शरीर के बल को लगाते हैं, ऊर्जा का यूज करते हैं. So here the question is, do you know the difference between the force and energy? So we will say, when you kick a football, your foot apply the force to move the ball and your body use the energy to apply that force. So force is push or pull and the energy is power to do work. So बल क्या है? किसी वस्तु को धक्का देना या खींचने का जो काम है वो फोर्स होता है. ऊर्जा क्या है? ऊर्जा काम करने की जो कैपेसिटी है आपके अंदर, जो क्षमता है, वो एनर्जी होती है. अगर हम गेंद को किक मारते हैं तो पैर गेंद पर बल लगाता है, फोर्स लगाता है.
लेकिन शरीर की ऊर्जा उस बल को लगाने में मदद करती है, वो एनर्जी होती है। We have learned that a push or pull on an object is called force. We push or pull things that is use force several times in a day. For example, we pull to open a door, we push a shopping cart, we pull a rope, we push an alphabet key to type on the laptop. Every push and pull result in a force being applied to some object. So we can't see the force, but we can see the effort of the force. यहाँ पे लिखा हुआ है हम बल, फोर्स को सीधे नहीं देख सकते क्योंकि ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसके इफेक्ट को देख सकते हैं। जैसे दरवाजा खुल जाता है, ट्रॉली चलने लगती है, कीबोर्ड की कुंजी दब जाती है अगर हम प्रेस करते हैं। तो ये क्या है कि इन बदलाव से पता चलता है कि हमने बल लगाया है, वैसे तो हम नहीं देख सकते। बट यहाँ पे लिखो व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स हेल्प अस टू स्पीड अप एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को स्पीड अप करने में मदद करता है फोर्स, स्लो डाउन करने में, स्टॉप करने में। या तो फोर्स स्पीड अप करेगा या स्लो डाउन करेगा या स्टॉप कर देगा किसी ऑब्जेक्ट को। एंड अलाउ अस टू चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन भी बदल सकता है किसी ऑब्जेक्ट की। फोर्स ऑल्सो अलाउ अस टू चेंज द शेप, शेप भी बदल सकता है किसी ऑब्जेक्ट की। अब यहाँ पे देखो, फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव टू मेक इट मूव फास्टर इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो और तेजी से मूव करने लग जाएगा। यहाँ पे बताया गया है फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप, रोक भी सकता है इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी उल्टी डायरेक्शन में अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट रुक भी सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट व्हेन अप्लाइड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। देखो, एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, अगर उसके थोड़े से दूसरे एंगल में अगर फोर्स अप्लाई कर देंगे तो वो इस साइड से आ रहा होगा दूसरे साइड चले जाएगा, जैसे बैडमिंटन में होता है। ठीक है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी ये फोर्स की वजह से ही ये दिया बन पा रहा है, शेप आकार बदल पा रहा है। What are the different type of force? There are many type of force: gravitational force, magnetic force, electrostatic force, muscular force, frictional force। 5 तरीके के फोर्स यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स है, द फोर्स दैट पुल एवरीथिंग टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। वो फोर्स जो हर चीज को अर्थ के बीच में खींचता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, या फिर हम उसे ग्रेविटी कहते हैं। वी थ्रो एनीथिंग अप, कुछ भी हम ऊपर भेजते हैं, इट ट्रेवल अप फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए वो ऊपर जाती है, देन इट फॉल टू द ग्राउंड, फिर वो आके ग्राउंड पे ही गिरती है। ऑब्जेक्ट थ्रोन अप फॉल टू द ग्राउंड ड्यू टू द ग्रेविटी, जो भी ऊपर भेजा गया है वो जमीन पे आके गिरता है ग्रेविटी की वजह से। फ्रूट्स फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, फल पेड़ से नीचे गिरना। वाटर फ्लोइंग डाउनवर्ड फ्रॉम अ टैप, नल से पानी का डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना, गिरना। अ बॉल थ्रोइंग अप फॉलिंग डाउन आर एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो सर आइजैक न्यूटन थे वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फिगर आउट किया दैट अर्थ पुल ईच ऑफ अस एज वेल एज अदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। जो हमारी पृथ्वी है वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। अब यहाँ पर देखो, ऑब्जेक्ट फॉल टू द ग्राउंड ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से चीजें नीचे गिर रही है। ये है सर आइजैक न्यूटन की फोटो। अब यहाँ पर बात की जा रही है मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। जब हम मैग्नेट को किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट के पास लाते हैं, चाहे वो क्लिप हो या कॉइन हो या कोई दूसरी मैग्नेट हो, तो वो उसके साथ स्टिक हो जाती है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो मैग्नेट दिखा रही है किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट के प्रति, वो मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। मैग्नेट अट्रैक्टिंग मेटल क्लिप्स, फ्रिज मैग्नेट, sticking to a refrigerator are the common example of magnetic force। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको ये क्लिप्स, ये इस मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो रही है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं? इफ यू रब अ बलून, इफ यू रब अ बलून, देखो फूला हुआ गुब्बारा अगर आप अपने हेयर्स में रब करते हो सेवरल टाइम्स,
एंड देन होल्ड इट ओवर योर हेड। फिर अगर तुम सर के ऊपर इसको होल्ड करते हो, यू विल फाइंड आउट दैट योर हेयर स्टैंडिंग टुवर्ड द बलून। तुम्हारे जो बाल है वो बलून की तरफ खड़े हो जाते हैं। द बलून एक्ट लाइक अ मैग्नेट। बलून एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा होता है और तुम्हारे हेयर्स को अट्रैक्ट कर रहा होता है। दिस फोर्स शोन बाय द बलून इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो फोर्स बलून दिखा रहा है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। Balloon rubbed on the hair sticking to a wall and rubbed plastic comb attract piece of paper। इस तरीके की चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में दिखाई जाती है कि अगर एक कॉम्ब को आप रगड़ोगे और फिर उसको, देखो ड्राई हेयर होना चाहिए, ऑयल वाला हेयर नहीं, ड्राई हेयर में रब करोगे तो ये पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ लिखा गया है, सर्च ऑनलाइन फॉर योर आंसर एंड डिस्कस इन द क्लास, फाइंड आउट हु डिस्कवर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब आप बड़ी क्लासेस में होंगे तो आप कूलम्ब्स के बारे में जानेंगे, तो ये वही है, चार्ल्स अगस्टिन डे कूलम्ब। So the study of electrostatic force developed over the time through the work of many scientists, but the scientist most closely connected with the discovery and explain electrostatic force is Charles Augustin de Coulomb. He discovered the law of electrostatic force in 1785 called Coulomb's law. उन्होंने कहा था that opposite charge attract each other and like charge repel each other and the force between them weaker when the distance increase. These are the things he said, Coulomb said. उसके पहले भी कुछ डिस्कवरीज थी, जैसे कि विलियम गिलबर्ट, उन्होंने भी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी वो फेमस उसका एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ वो किया था। लेकिन कूलम्ब ने मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। ओके, यहाँ पे गिवन है व्हाट इज मस्कुलर फोर्स। वी यूज अवर हैंड और लेग टू पुल, पुश और कैरी लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स। हम अपने हाथ पैर का यूज करते हैं किसी चीज को पुश करने के लिए, पुल करने के लिए, या कैरी करने के लिए, या किसी चीज को उठाने के लिए। द फोर्स शोन बाय अवर लिम्ब। हमारे हाथ, लिम्ब क्या होता है, कोई भी वो ऑर्गन जो हमें मूव करने में मदद करे वो लिम्ब कहलाता है। द फोर्स शोन बाय द लिम्ब टू पुश पुल द ऑब्जेक्ट इज मस्कुलर फोर्स। जो लिम्ब हमारा फोर्स जो दिखाते हैं, जो फोर्स हमारे लिम्ब से दिखाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश पुल करने के लिए, वो मस्कुलर फोर्स कहलाता है। ओके, पुशिंग अ कार्ट, जब हम कार्ट को पुल कर रहे होते हैं या एक सूटकेस को पुल कर रहे होते हैं, कार्ट को पुश कर रहे होते हैं, सूटकेस को पुल कर रहे होते हैं, या किसी हैवी आइटम को लिफ्ट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जो फोर्स लग रहा होता है वो मस्कुलर फोर्स होता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, एक ऐसा फोर्स होता है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, जो किसी चीज को स्लो डाउन कर देता है, या उसको हम क्या बोलेंगे, या रोक देता है कंप्लीटली, वो फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। अ फोर्स दैट एक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट टू आइदर स्लो इट डाउन or to stop it completely. When we push a toy car on the ground, it does not move forever. अगर हम पुश करें एक टॉय कार को तो ऐसा तो नहीं होता कि वो पूरे टाइम चलती रहेगी। It gradually slow down and finally वो स्टॉप हो जाती है। क्यों हो रहा है ऐसा? फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। Because friction occur between the two surfaces that are touching like the wheel of the toy car and the ground. They are in touch and they are facing frictional force in between. जबकि जो स्मूथ सरफेस होता है जनरली वो लेस फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करता है देन द रफ सरफेस। सो वी स्लिप ऑन अ स्मूथ सरफेस और अ वेट सरफेस बिकॉज फ्रिक्शन वहाँ पर कम होता है। फ्रिक्शन कैन बी एन एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज। उसका फ़ायदा भी हो सकता है, उसका नुकसान भी हो सकता है। एडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन की? फ्रिक्शन बिटवीन द पेपर एंड द पेंसिल हेल्प अस टू ड्रॉ एंड राइट ऑन द पेपर। पेपर और पेंसिल के बीच में जो फ्रिक्शन है वो हमें ड्रॉ करने में या लिखने में मदद करते हैं पेपर के ऊपर। इफ़ देयर वाज नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा बिटवीन द पेंसिल एंड द पेपर, हम तो लिख ही नहीं पाएंगे क्योंकि पेंसिल उस पर स्लिप करती रहेगी। सो वी वुड नॉट बी एबल टू राइट और ड्रॉ एनीथिंग। सो
Friction between the hands and the object help us to hold any object easily. So if there was no friction, object we try to hold would slip or fall. अगर कोई friction नहीं होगा, अगर हम किसी object को पकड़ना चाहेंगे या तो slip हो जाएगा या गिर जाएगा. Friction between our feet and the ground stop us from slipping. Thus, friction make it possible for us to walk and run on the ground. Friction between the force of the road and the tires of the vehicle allow vehicle to move. देखो, रोड के बीच में और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से व्हीकल मूव कर पाते हैं. अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो जो कार का व्हील है वो रोड के ऊपर स्किड कर जाएगा, फिसल जाएगा, चल नहीं पाएगा. डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं फ्रिक्शन की? फ्रिक्शन मेक ऑब्जेक्ट वियर अवे विद टाइम. खराब हो जाते हैं ऑब्जेक्ट इसकी वजह से. दिस कॉजेज डैमेज टू टायर ऑफ द व्हीकल. हमारे शूज़ के सोल खराब हो जाते हैं, एक्सेट्रा. इस तरीके की चीज़ें होती है. फ्रिक्शन जनरेट हीट बिटवीन मूविंग पार्ट. जो चीज़ मूव कर रही है ना, उन दोनों सरफेसेस के बीच में हीट प्रोड्यूस करती है. इन मशीन्स वेयर मूविंग पार्ट टच ईच अदर. मशीन के अंदर जब मूविंग पार्ट एक दूसरे को टच करते हैं तो लॉट ऑफ हीट जनरेट होती है फ्रिक्शन की वजह से. समटाइम जो हीट है वो मशीन के पार्ट को भी डैमेज कर देती है. फ्रिक्शन नॉइस भी प्रोड्यूस करता है. जब कोई मूविंग पार्ट होता है किसी मशीन का तो मूव करता है तो फ्रिक्शन उनके बीच में होता है जिसकी वजह से आवाज़ भी क्रिएट होती है. If the noise due to the friction is very loud, वो हमारे ears के लिए harmful होती है. So sometime we reduce or increase friction to help us. So हम reduce कैसे करेंगे friction को? By using a material that will make moving surface smooth. ऐसा material use करके जो कि चलने में आसानी हो, वो move करने में वो surface smooth लगे. For example, हम यहाँ पर देखो दरवाजे हैं, उसकी हिंज को मूव इजीली करवाना है तो हम उसमें ऑयलिंग कर देते हैं ताकि अब वो आवाज़ ना करे, नॉइसलेसली वो अब मूव कर पाएंगे. हम टैल्कम पाउडर का यूज़ करते हैं जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं ताकि जो डाइस है वो स्मूथली उस सरफेस में मूव करे. We increases friction by making the moving surface rough. We increases friction by making the moving surface rough. फॉर एग्जाम्पल टायर है, अगर उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं होगा, उसको हम रफ नहीं बनाएंगे तो स्किड कर सकता है. तो इसलिए इसका जो टेक्सचर होता है, इसके जो आउटर एरिया होता है ना टायर का, वो इतना जिग जिग जैसा बनाते हैं ताकि इसके अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ाए और ये अच्छे से चल पाए रोड के ऊपर. So tires of the vehicle have grooves that make the surface of the tire rough so that the vehicle do not skid when moving through wet surface. Tennis player rub chalk on their hand so that their hand can grip the racket without slipping. टेनिस प्लेयर है ना, अपने हाथ पर चाक पाउडर को रगड़ते हैं ताकि वो थोड़ा ग्रिप कर पाए. टेनिस खेलते वक्त है ना, उनका बल्ला ना छूट जाए उनके हाथ से, इसलिए ऐसा करते हैं वो फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए. अब हमें मैच द फॉलोइंग करना है टाइप ऑफ फोर्स के साथ. ओके, तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स कौन कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ये, फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये मस्कुलर फोर्स है और ये मैग्नेटिक फोर्स है. ओके, ऑल सेट, ऑल डन. यस. एनर्जी क्या होती है अब हमें वो पढ़ना है. तो अब हम पढ़ रहे हैं एनर्जी के बारे में. क्या आपको याद है कि किसी चीज़ पे, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट उसी अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है, तब हम कहते हैं कि यहाँ पर तो काम हुआ है. अब ये बच्चा है, बच्चे ने आगे की तरफ कार को मूव किया और कार आगे तरफ मूव होने लग गई. यानी कि एक जो टॉय कार है मूव होती है जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाएगा, तब हम कहेंगे कि यहाँ पर वर्क डन हुआ है. लेकिन ये बिग कार है, इसके ऊपर जब बच्चा फोर्स अप्लाई करेगा तो ये कार मूव नहीं करेगी, तब हम क्या कहेंगे? यहाँ पे वर्क डन नहीं हुआ, क्योंकि कोई मोशन नहीं हुआ, यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं हुई. तो अब इस बच्चे ने पुश किया
इस कार को, बट ये कार मूव नहीं हुई। तो इसका मतलब वर्क इज नॉट सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ कार बट द कार डज नॉट मूव। हम कहेंगे कि यहाँ पर काम नहीं हुआ है। कब तक काम नहीं होता? जब तक कोई रिजल्ट ना दिखे। अगर मैं किसी चीज को धक्का लगाऊं और वो चीज मूव ही ना करे तो हम कहेंगे कोई काम नहीं किया आपने। अगर मैं दीवार को धक्का लगाऊं और दीवार मूव ना करे तो इसका मतलब कोई काम नहीं किया। अगर मैंने कार के धक्का लगाया, कार को पुश किया, कार मूव नहीं करी तो इसका मतलब मैंने कोई काम नहीं किया है। तो वर्क डन कब कहा जाता है? वर्क डन तब कहा जाता है कि हम कोई एफर्ट डालें और उसका कोई रिजल्ट भी निकले। पर यहाँ पर तो नहीं निकला, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो टॉय कार है उस उधर तो वर्क डन हुआ है बट इधर वर्क डन नहीं हुआ। ओके, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की क्षमता एनर्जी कहलाती है। वी नीड एनर्जी टू डू वर्क। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी? Energy exists in many different forms such as mechanical energy, heat energy, light energy, electrical energy and sound energy. Mechanical energy क्या होती है? ये मोशन और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई एनर्जी होती है। या तो ये काइनेटिक एनर्जी होगी या पोटेंशियल एनर्जी होगी। जो मूविंग ऑब्जेक्ट में पाई जाए वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। यानी कि जो भी चीज़ मूव कर रही है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। व्हीकल मूव कर रहा है, बच्चे मूव कर रहे हैं, डॉग बिल्ली को पकड़ रहा है तो उसको चेज कर रहा है, तो उन सब के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। एन ऑब्जेक्ट कैन स्टोर एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। अपनी पोजीशन की वजह से एक ऑब्जेक्ट अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर सकता है। एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट हैज़ एज स्टोर एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। स्टोर एनर्जी के रूप में किसी ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। फॉर एग्जांपल के लिए एक हैमर है तो उसके पास हिट करने की पावर है, एनर्जी है। सो हैमर रेडी टू हिट अ नेल तो पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास। अ कार पार्क्ड ऑन द टॉप ऑफ द हिल, पोटेंशियल एनर्जी है। बो पुल्ड बैक बिफोर रिलीजिंग, एक जो बो है हम उसको छोड़ने से पहले पीछे खींचते हैं तब उस टाइम पे उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो वो पीछे खींचा हुआ रहता है। तो यानी कि वो अभी उसके पास इतनी पावर है, जैसे उसको छोड़ा जाए तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी एनर्जी। तो ये सब एग्जांपल होते हैं पोटेंशियल एनर्जी के। देखो ये जो हील्स के ऊपर कार को मैंने पार्क किया हुआ है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। इन केस ऑफ बो एंड एरो, when the bow is pulled back, bow को हम pull back करते हैं, it stores some amount of energy and the potential energy stored by the bow changes to kinetic energy when kinetic energy of the arrow when the string is released. So तब क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी जो बो के अंदर स्टोर थी वो चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी में, एरो की काइनेटिक एनर्जी में जो हम स्ट्रिंग को रिलीज करते हैं। हीट एनर्जी क्या होती है? व्हेन यू स्टैंड नियर अ bonfire you can feel the warmth of the fire. So this means that the fire is giving out energy in the form of heat. When we say something is hot, we mean it is giving हीट एनर्जी। कुछ गर्म है इसका मतलब वो हीट एनर्जी दे रही है। हीट एनर्जी को हम थर्मल एनर्जी भी कहते हैं। थर्मल एनर्जी कैसे कॉज की जाती है? बाय द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड द सब्सटेंस एंड दिस एनर्जी इज फॉर्म्ड व्हेन द मॉलिक्यूल मूव फास्ट इनफ टू रिलीज हीट। सो फ्यूल सच एज वुड, केरोसिन, पेट्रोल, है ना, एंड द कोल releases heat energy when burned. So in our home we use heat energy to cook food as well as to keep ourselves warm. ओके, तो हम खाना बनाने के लिए हमारे घरों में हीट एनर्जी की यूज़ करते हैं, खाना पकाते हैं, अपने आप को गर्म रखते हैं। अब पढ़ेंगे कि लाइट एनर्जी क्या होती है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें देखने में मदद करती है। सन एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट एनर्जी है। इलेक्ट्रिक बल्ब, लैम्प, कैंडल, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ पर
हाइड्रो एनर्जी के बारे में बताया गया है। ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो मूविंग वाटर से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, इसीलिए बांध बनाए जाते हैं बड़ी बड़ी रिवर्स के ऊपर ताकि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सके। क्यों? क्योंकि मूविंग वाटर के पास एनर्जी होती है, तो इसीलिए डैम बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर बात करें जा रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। यहाँ पर एक बच्चा है, वो टेलीविज़न को देख रहा है और उसमें कार्टून देख रहा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे जनरेट की जाती है? इज जनरेटेड एट पावर स्टेशन and supplied to the user. So this form of energy is used in the factory to make a machine work, to light up rooms, when it is dark at home, to watch television, to run the computer and run many appliances in the kitchen. So lightning is an example of electrical energy in nature. Sound energy क्या होती है? तब प्रोड्यूस होती है when a force causes an object or substance to vibrate or move quickly, तब sound energy प्रोड्यूस होएगी. So if you gently touch an object that makes sound, you can feel the vibration. वाइब्रेशन को आप महसूस कर सकते हो. म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है, टेलीविज़न हुआ, रेडियो हुआ, लाउड स्पीकर हुआ, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं ऐसे चीज़ों के जो साउंड एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं. जब हम बोलते हैं साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये ड्रम है, साउंड को प्रोड्यूस कर सकता है. व्हाट आर सम सोर्सेज ऑफ एनर्जी? यहाँ पर सोलर पैनल की पिक्चर है, टरबाइन की पिक्चर है, विंड टरबाइन की. सो सन, विंड, कोल, पेट्रोलियम, ये कुछ एग्जाम्पल है एनर्जी के. द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. सोलर पैनल आर यूज्ड टू कैप्चर सन एनर्जी फॉर हीटिंग थिंग्स और फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द मूविंग विंड, वो विंड एनर्जी कहलाती है. Wind turbine are moved to convert wind energy to generate electricity. So many wind turbine work together in a wind farm. बहुत सारे wind turbine एक wind farm में एक साथ काम करते हैं ताकि एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके. Coal, petroleum are also sources of energy. We burn fuel such as coal, petroleum to get energy to cook things, to heat things and also to run machines. नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती रहती है. फॉर एग्जाम्पल, स्विचिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक बल्ब चेंजेस द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी. जब हम इलेक्ट्रिक बल्ब को स्विच ऑन करते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें आई थी वही कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी में. स्विचिंग ऑन अ टेलीविज़न चेंजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी. जब हम टेलीविज़न को ऑन करते हैं तब उस केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. रियल वर्ल्ड कनेक्ट इज रिटन हेयर. इन ग्रीन प्लांट के अंदर लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन इज ट्रांसफॉर्म टू केमिकल एनर्जी. सन से जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जा रही है एंड विच इज़ देन स्टोर्ड एज फूड. बाद में वो फूड की तरह में स्टोर होती है. द मसल्स इन आवर बॉडी ट्रांसफॉर्म केमिकल एनर्जी इन द फूड वी ईट टू काइनेटिक एनर्जी व्हेन द मसल्स मूव. जो हमारे शरीर की मसल्स होती है वो जो केमिकल एनर्जी यानी कि जो फूड हमने खाया था उसकी एनर्जी को, उस केमिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदल देते हैं जब हम मूव करते हैं. यहाँ पर सेक्शन रिव्यू है. लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस. अ हैमर रेडी टू हिट द नेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ. सो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. सो राइट डाउन. Potential energy. A child yelling is an example of.
Sound energy. So a child yelling is an example of sound energy. Okay, next. A dog chasing a cat is an example of kinetic energy. Kinetic energy. A dog chasing a cat is an example of kinetic energy. The room heater is an example of heat energy as well as light energy, क्योंकि उसे उसकी वजह से हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई भी देता है, तो इसलिए इज एग्जाम्पल ऑफ heat energy as well as light energy. Fire is an example of heat energy. फायर किसका एग्जाम्पल है? हीट मिलती है हमें, इसलिए हीट एनर्जी. रनिंग ऑफ अ कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं जो हमें करने हैं. पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स. क्या होता है? फोर्स दैट पुल एवरीथिंग टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. जो सब कुछ अर्थ के सेंटर की तरफ खींचता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है. मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शोज बाय अ मैग्नेट टू मेटालिक ऑब्जेक्ट, मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है. मस्कुलर फोर्स क्या होता है? फोर्स शोन बाय आवर लिम्स टू पुश और पुल ऑब्जेक्ट्स, मस्कुलर फोर्स. फ्रिक्शन क्या होता है? फोर्स दैट एक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट टू आइदर स्लो इट डाउन और टू स्टॉप इट. दो चीज़ों के बीच में लगने वाला ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, या तो वो उसको स्लो करता है या फास्ट करता है, वो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है. एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क. काइनेटिक एनर्जी क्या है? मूविंग ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी. रेस्ट कर रहे ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी, उसको स्टोर्ड एनर्जी बोलते हैं. Form of energy and me. So note down the form of energy you uses every day, not as many as you can. So I use many form of energy every day. I use light energy, I use heat energy, I use kinetic energy, I use electrical energy, I use sound energy. The energy to move my body and to grow come from the force such as this is this. तो ये आपको complete करना है. तो इसमें आप लिख सकते हो I use light energy to read book, to study in my room and to see things around me. I use heat energy for cooking food, ironing clothes and keeping warm in winter. I use kinetic energy while walking, running, cycling, playing game. I use electrical energy to run the fan, television, computer, refrigerator and mobile charger. I use sound energy to talk to others, to listen to music, to hear the school bell. The energy to move my body and to grow comes from milk, fruit, vegetable, rice, chapati, egg, nuts. Okay. And after that we have some objective type question. This is a type of force. Friction is a type of force. Okay. A balloon rubbed on hair stick to the wall because of their electrostatic force. तो पहला फ्रिक्शन फोर्स होता है, बलून इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से दीवार में चिपकता है. दिस कॉजेज फ्रिक्शन. जब दो सरफेस एक दूसरे से अगेंस्ट रब होते हैं तो फ्रिक्शन होता है. वन skids on an oily surface because of oil reduces the friction. This is a type of energy. मस्कुलर फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी होती है.
ट्रू एंड फॉल्स लिखना है। मस्कुलर फोर्स कॉजेज डैमेज टू बाईसाइकिल टायर, नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स कॉजेज डैमेज टू द टायर। फ्रिक्शनल फोर्स कॉजेज अ मूविंग बॉडी टू मूव फास्टर, नहीं, स्लो डाउन कर देता है। Potential energy is the stored energy of a body to rest. फ्रिक्शनल फोर्स देखो फास्ट मूव नहीं करवाएगा बिल्कुल भी, वो या तो स्टॉप करेगा या स्लो डाउन करेगा। ओके, तो ये भी फॉल्स है, तो चलो लिख देते हैं। मस्कुलर फोर्स डैमेज करता है टायर, बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इसलिए फॉल्स, दूसरा भी फॉल्स, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से स्लो डाउन होएगा या स्टॉप होएगा। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर एनर्जी ऑफ द बॉडी एट अ रेस्ट, बिल्कुल ट्रू। द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ साउंड एनर्जी, फॉल्स। तो फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट यहाँ पर फॉल्स है, थर्ड वाला ट्रू है। मैच द फॉलोइंग करना है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? पानी इसकी वजह से नीचे गिरता है, टैप से नीचे गिरता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ओके, साउंड एनर्जी, बच्चा जो प्लेग्राउंड में चिल्ला रहा हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक ओवन में। मस्कुलर एनर्जी, पुशिंग द बॉक्स। मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेट मेटल को इनको अट्रैक्ट करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, कॉम पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक करने हैं। अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। पुश और पुल क्या कहलाएगा? फोर्स कहलाएगा। हीट एनर्जी इज एन एग्जांपल ऑफ yes, thermal energy, energy that an object has a stored energy, energy that an object has a stored energy is called potential energy। एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड एनर्जी के रूप में जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन समथिंग इज हॉट इट इज गिविंग आउट हीट एनर्जी। अगर कुछ हॉट होता है तो वो हीट एनर्जी दे रहा होता है। व्हेन वी स्पीक और शाउट वी आर प्रोड्यूसिंग साउंड एनर्जी। ऑब्जर्व एंड आंसर, लुक एट द पिक्चर एंड राइट डाउन all the form of energy that this device use and produce। तो the device uses electrical energy and produces light energy and sound energy and heat energy। अगला है हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फोर्स क्या होता है? Force, what is force? Force is push or pull acting on an object। ये जो आपके क्वेश्चन एंड आंसर है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। लिस्ट एनी 3 टाइप ऑफ फोर्स: ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। राइट वन वे इन विच वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन। सो वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन बाय मेकिंग सरफेस रफ, सरफेस को रफ करके। लिस्ट एनी 3 टाइप ऑफ एनर्जी। रिड्यूस करने का वहाँ पे दिया गया, इंक्रीज कैसे कर सकते हो? वी कैन इंक्रीज, नहीं 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 नहीं, रिड्यूस करेंगे बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस ऑन द सरफेस, और इंक्रीज करेंगे बाय मेकिंग सरफेस रफ। अगर सरफेस रफ होगा तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, अगर ऑयल होगा तो वो सरफेस स्लिपरी हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा। ओके, लिस्ट एनी 3 टाइप ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 3 तरीके की एनर्जी हो गई। आगे बताओ। आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल।
Describe briefly giving one example of each. Gravitational force क्या होता है? The force that push pull object toward the earth is called gravitational force. Example क्या होता है? Apple fall from a tree. Electrostatic force क्या है? The force produced due to electrical charge is called electrostatical force. Example, a rubber balloon attract bits of paper. Magnetic force. The force by which a magnet attract the iron object is called magnetic force. Example, magnet attract iron nails. Next question हमारे पास क्या है? Why do you think thrown up travel a little distance and then fall down? They fall down because of Earth gravitational force pull them back. Next, what do you think would happen if there was no gravitational force? Things would float in the air and we would not stay on the ground. What do you think a magnet attract a metal clip to itself? Because metal clip is made up of magnetic material like iron or steel. That's why it is. Next, is it easier to walk on a skating ring? Has less friction? It is easier to walk on a skating ring than on the road. Give reason. Because no, it is harder because the skating ring has less friction. So we may slip easily. Road has more, क्योंकि walk की बात हो रही है ना यहाँ पे. Road has more friction which help us to walk properly. So यहाँ पे look at the picture and write E form of energy and F types of force. तो first है force. ओके यहाँ पर फोर्स है लेकिन ये फोर्स है और ये लाइट एनर्जी है, ये हीट एनर्जी है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, फोर्स भी कह सकते हो आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके ये मैग्नेटिक फोर्स है, फ्रिज इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से चल रहा है. प्रोजेक्ट वर्क. With the help of magnet, try to attract different objects at your house. Make a list of 10 items that are magnetic and 10 items that are not magnetic. So you have to do this. Ask your parents why they frequently change the machine oil in their vehicles. Is it to reduce the friction between the engine parts? Find out about it. तो प्रोजेक्ट वर्क में आप लिख सकते हो आयरन नेल, सेफ्टी पिन, पेपर क्लिप, स्टील स्पून, स्क्रू, की, निडल, आयरन चेन, स्टेपलर, सीजर. ये तो है मैग्नेटिक है. नॉन मैग्नेटिक में आप लिखोगे प्लास्टिक बोतल, रबर बैंड, वुडन रोलर, पेपर, ग्लास कप, क्लॉथ, इरेजर, पेंसिल, प्लास्टिक कॉम, स्टोन. रिसर्च एक्टिविटी में बताया गया है आस्क योर पेरेंट्स व्हाई दे फ्रीक्वेंटली चेंज द मशीन ऑयल इन देयर व्हीकल. Is it to reduce the friction between the engine parts? Find out more about it. So yes, machine oil is changed to reduce the friction between the engine parts. Machine oil act as a lubricant. It helps the engine part move smoothly, reduce heat, prevent damage and increase the life of the vehicle engine. Discuss and answer. What kind of energy is produced by lightning and thunder? Discuss with your classmate. Lightning produce light energy and electrical energy. Thunder produce sound energy.
Connect to the life. Electrical energy is produced from thermal energy of fossil fuel, which are limited in nature. Find out how electrical energy can produce through the sun, wind, and water. So sun solar panel convert light energy into electrical energy. Windmill or wind turbine use wind to generate electricity. Water in dam turn turbine to produce hydroelectricity. So now please check these self check points and आप ये कर पा रहे हो कि नहीं. Tell me in the comment section. We will meet you in the next. Oh wow, next topic is simple machine. This we are going to do.